Good morning, students. Welcome to the online classes, and I am your SST teacher. In the chapter we are studying is about the Mughals. Now, we have already read about Babur, and our today's topic is Humayun. Now, after his death, Babur was succeeded by his son Nasruddin Muhammad, better known as Humayun. He faced a series of problems after ascending the throne. His father was divided and annexed territories between him and his brothers. Among his brother Kamran got Kabul and Khandar, Aksari got Sambhal, and Hindal got Alwar and Mewat. Kamran, the most ambitious of all his brothers, never let him live in peace. Moreover, Humayun had to face the hostility of the Afghans led by Sher Shah Suri and Bahadur Shah, the ruler of Gujarat. Though Humayun was initially successful against both of them, Bahadur Shah soon wrested back Gujarat and Malwa. Sher Shah proved to be a more formidable enemy as he defeated Humayun decisively in the Battle of Chausa and Kannauj in 1539 CE and 1540 respectively. These defeats forced Humayun to flee to Kabul and thereafter Persia, where he took shelter under the Safavid Shah Thummas. देखिए, बाबर के डेथ के बाद हुमायूं ने उनके राजगद्दी संभाला, जिनका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, बट हम उनको आज भी हुमायूं के नाम से जानते हैं। अब इनको थ्रोन संभालने में, राजगद्दी संभालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ, क्योंकि बाबर के टोटल 4 बेटे थे, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। तो हुमायूं को राजगद्दी देने के बाद उनके बाकी तीनों बेटों को उन्होंने अलग अलग टेरिटरी दे दिया, जिसमें कि कमरान को उन्होंने काबुल दिया और खांधार दिया, अक्सरी जो उनके तीसरे बेटे थे उनको संभल दिया, हिंदाल को अलवर दिया, मेवट दिया कमरान को। बट कमरान जो था बहुत एम्बिशियस था और वो हुमायूं को पीसफुली नहीं रहने दिया, जिससे क्या हुआ, हुमायूं को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और उन्हें अफगान के जो रूलर थे शेर शाह सूरी और बहादुर शाह, जो उस टाइम पे गुजरात में रूल करते थे, उन दोनों का सामना करना पड़ा और बाद में वो सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन शेरशाह जो थे वो हार मानने वालों में से नहीं थे और उन्होंने फिर से बाबर पे आक्रमण किया और बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज हुआ, जिसमें वो हार गए। और इस तरह से फिर हुमायूं को सब छोड़ छाड़ के काबुल जाना पड़ा और उसके बाद उन्हें पर्सिया में अब शेल्टर लेना पड़ा। अब तो हुमायूं चले गए। तो आफ्टर हुमायूं हु रूल्ड इंडिया, तो शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया, जिसको हम सू डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ये थोड़े टाइम के लिए था। तो क्या हुआ वो देखते हैं। शेर शाह सूरी, ऑल्सो कॉल्ड शेर खान, वॉज son of a small jagirdar from Jaunpur. His original name was Farid Khan. In his youth, he killed a tiger with his bare hand and he emerged as the strong ruler of Bihar and occupied the throne of Delhi in 1540 by defeating the Mughal emperor Humayun. वैसे तो शेर शाह सूरी का नाम था फरीद खान, लेकिन लोग उन्हें शेर खान के नाम से जानते थे, क्योंकि बहुत ही कम एज में उन्होंने एक टाइगर को मार दिया था, जिससे लोग उन्हें शेर कहते थे। तो बाद में उन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई किया 1540 में, जब मुगल एम्पायर हुमायूं को उन्होंने हरा दिया। Sher ruled a vast territory extending from river Jhelum in the west to river Brahmaputra in east and the Indus and the Himalaya in the north, excluding Kashmir, Malwa and Rajasthan, to river Narmada in central India. The administrative system was well organized under him. He paid great attention to the growth of trade and commerce, improvement of communication and organization of the army. The welfare of people was one of his prime concern. Most of his reform reflected this concern. Sher Shah Suri is also credited with having reformed the currency system, making it uniform in nature. He struck the coins called rupiah, made of gold, silver and copper in place of mixed metal coins. He built an excellent network of road known as Grand Trunk Road or the GT Road. It is still in use both in India and Pakistan. He built
सरियाज थ्रू आउट हिज एम्पायर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। बट जो शेरशाह थे वो काफी अच्छे रूलर थे और उन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया तो आप देखेंगे कि उन्होंने इंदस रिवर झेलम से ब्रह्मपुत्रा की तरफ ईस्ट तक रूल किया, जिसमें कश्मीर, मालवा और राजस्थान पे वो रूल नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत ही ज्यादा अटेंशन दिया ट्रेड और कॉमर्स को कि किस तरह से वो दूसरे कंट्रीज के साथ व्यापार कर सके। उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज रखा था और लोगों के हित में सोचना उनका पहला कंसर्न था। और शेरशाह सूरी को ही करेंसी सिस्टम के लिए जाना जाता है, क्योंकि करेंसी सिस्टम पूरी तरह से इंडिया में उन्होंने ही शुरू किया था। और वो पहले जो मिक्स कॉइन्स होते थे मिक्स मेटल के, उनको वो रिप्लेस करके गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स और रुपया का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत ही बड़ा नेटवर्क ऑफ रोड बनाया, जिनको हम जीटी रोड आज भी यूज हो रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। उनको शेरशाह सूरी ने बनवाया और वो अपने एम्पायर से दूर दूर तक एरियाज में सराय बनाते थे, धर्मशाला टाइप का, ताकि ट्रैवलर्स को, जो आने जाने वाले राहगीर हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। और वो सेफ्टी ऑफ रोड्स और हाईवेज का काफी ध्यान रखते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शेरशाह सूरी। शेरशाह कैसे अपनी आर्मी को एडमिनिस्टर करते थे उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।